So hi, it's me again after a long time. Haven't uploaded a video since like past let it be 2 months or 3 months. So let's just get to the thing that I want to talk about in this video. Okay. So अगले ये 5 minute, I don't know will it last like 5 minutes or 10 minutes. अगले ये 5 minute या 10 minute, these are really important for you and your future. Like बहुत ज़्यादा important है. So just listen to this. Seriously, just listen to this. कभी तुम लोगों ने सुना है कि like poor is getting poorer and rich is getting richer? Yeah, rich is getting richer and poor is getting poorer. Obviously हमने सुना है कि मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है. मतलब क्या? गरीब के साथ गरीब तो अमीर छु बना अमीर. मतलब why is that? Like what's the reason behind that? I know a millionaire in front of you right now, but I have some knowledge about this that I want to share with you guys. Okay? So I'll be very honest with you. Knowledge is the weapon that you can use during the battle of your life. Okay. So what I want to discuss in this video is that कि मतलब क्यों हम ऐसा कहते हैं कि rich is getting richer and poor is getting poorer? What is the reason behind that? The main reason and the main reason behind that is because we don't know how to be rich. And that's the reality. Obviously, पता होते सब होते है ना? So हर कोई कहता है discipline, consistency, there should be a discipline, consistency. मतलब तुम लोग को discipline होना चाहिए, तुम लोग consistent होने चाहिए. But the thing is that कि towards what? The direction. पता होनी चाहिए. Example अगर मुझे कहीं जाना है, let it be example I'm gonna go to somewhere, okay? So मुझे पता होनी चाहिए कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है. ठीक है ना? तो मैं उस रास्ते पे काम करूँगा. I will be consistent, like towards that way. I will be consistent towards that way. मैंने पता होना चाहिए कि like क्या रास्ता है. ठीक है ना? So जब मुझे पता ही नहीं है, I am disciplined. मतलब जो स्मोकिंग करता है वो हर दिन करता है. He has consistency of smoking. ना वो भी consistent है स्मोकिंग करने में. So it simply matters कि मतलब कि रास्ता क्या है. What is your direction? तुम लोग का रास्ता क्या है? तुम लोग kind of ना तुम लोग को पता होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं. So वो कैसे पता चलेगी? It's the very basic concept. है ना? और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है? अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है? अमीर लोगों को ऐसा क्या पता है जो गरीब को पता नहीं है ना? It's a very basic concept that I want to discuss about in this video. ठीक है? So it will only take 2 minutes. बस अभी से just it will take I guess 2 minutes or 3 minutes. That's it. ठीक है ना? Coming to the place where I live, Kashmir. I have seen many cars. मैंने बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे देखी है, like Fortuner, like और भी गाड़ियाँ, बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे तो वो मैंने देखी है. ठीक है ना? So I have noticed and I have observed that कि मतलब उनमें maximum like let it be 60%, 70% the cars they are on a kind of EMIs, like किश्तों पे. Why? What's the reason? क्यों है? Is it like they cannot afford? Is it like that? Maybe they know better about that. The main reason is that कि वो दूसरों के लिए जीता है. वो दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढता है. वो नहीं अपनी खुशी में खुशी ढूंढता है. That is the difference. And I will give you an example. चलिए मैं आपको example देता हूँ कि like example तुम लोग किसी दुकान में गए, कपड़े की दुकान में गए, तुम लोगों ने वहाँ पे एक कपड़ा खरीदा. ठीक है ना? It's a very basic concept of the thing that I'm trying to explain you right in this video. Okay? So मतलब तुम लोग उस दुकान पे गए, तुम लोग को जो कपड़ा पसंद आया तुम लोगों ने उठाया, तुम घर गए, तुम लोगों ने घर वालों को दिखाया कि like this is the one I like. So ये कपड़ा that I like. तो अगर वो तुम लोगों को कहेंगे ना कि like मतलब अगर वो तुम लोगों को कहीं ना कि लाइक वो तुम लोग लाइक उन लोगों को पसंद नहीं आया, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा. सो व्हाट्स द थिंग? योर वे टुवर्ड्स दैट थिंग, टुवर्ड्स द थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी बॉट, इट विल चेंज. मतलब जो तुम लोगों ने चीज़ वो ऑलरेडी खरीदी है ना, उस चीज़ में जो तुम लोगों को पहले खुशी दिखी थी ना, वो खरीदने के टाइम वो खुशी इट विल बी वैनिश्ड. क्या मतलब है उसका? व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि तुम लोगों ने अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे दी. Regardless of your own happiness, regardless of your own condition that you are right now in. So it definitely goes like that when it comes to that car. मतलब उन लोगों की financial condition, उन लोग the way they are living their life, they have just like ignored that thing. मतलब क्यों? It's the show off. It's the thing that they are living for others. वो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. Okay, coming to the thing that why is poor getting poorer and why is rich getting richer? The main reason is awareness. Awareness किस चीज़ की awareness? इसके मुझे कुछ पाया है किस चीज़ की awareness? Awareness of the thing, those awareness of the assets. Okay, awareness of the things, those are assets like bonds. We should know it.
लाइक एग्जाम्पल, आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। रिसेंटली गोल्ड की अगर मैं बात करूँगा, गोल्ड की बात अगर वो सोनी की बात कर रहा है, गोल्ड की बात अगर मैं करूँगा, वो ऑल टाइम हाई पे था कुछ टाइम पहले, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल तुम लोगों ने एग्जाम्पल वो करंटली आई डोंट नो 10,600 के समथिंग में आता है अभी 1 ग्राम, ठीक है ना। सो आई माइट बी रॉन्ग अबाउट द प्राइस ऑल्सो, गलत भी हो सकता हूँ प्राइस के बारे में। तो उससे क्या पता चलता है, लाइक काइंड ऑफ वक्त के साथ उसका जो प्राइस है ना, वो ऊपर गया है, वो बहुत ऊपर गया है। लाइक काइंड ऑफ इस साल तो ऑलमोस्ट 50-60% गोल्ड ऊपर गया है। तुम लोगों ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए होते हैं, तुम लोग को 6 लाख प्रॉफिट मिलता है। तुम लोगों ने 10,000 इन्वेस्ट किए तो तुम लोग को 6,000 प्रॉफिट मिलता है। मनी अट्रैक्ट्स मनी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल दो। एग्जाम्पल मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने एक स्टॉक में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। तो मुझे उसमें से वहाँ से मिला 5% रिटर्न, 5,000 रुपये। मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया, मुझे 5% मिला, 50,000 रुपये। मनी अट्रैक्ट्स मनी, जितना पैसा उतना पैसे का पैसा बनेगा, लेकिन पता होनी चाहिए कि वेयर शुड वी पुट द मनी एंड शुड बी हलाल एंड वेयर शुड वी पुट द मनी, दैट इज द डिफरेंस। अवेयरनेस होनी चाहिए कि लाइक कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। वी शुड इन्वेस्ट द मनी, वी शुड नॉट बाय द लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब होता है एग्जाम्पल, आई विल लाइक वी कैन मेक लाइबिलिटी एज एन एसेट। आई विल टेल यू एन एग्जाम्पल। मैंने एक फ़ोन खरीदा 20,000, तो कुछ साल, 1 साल के बाद उसको 20,000 आएंगे, घंटा नहीं आएंगे। It will be worth 20,000. It's like that. It will definitely not be worth 20,000. It will be like 11,000, let it be 12,000, 8,000, 9,000, whatever it is. But अगर तुम लोगों ने उस लाइबिलिटी को एसेट बनाया होता ना, एसेट मतलब जो तुम लोगों के पैसों को बढ़ाए, लाइबिलिटी मतलब कि जो तुम लोगों के पैसों को कम करे। सिंपली एसेट मतलब जो तुम लोग के जेब में पैसे डाले, लाइबिलिटी मतलब जो तुम लोग के जेब में पैसे निकाले। इट इज़ लाइक दैट, वेरी 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 बेसिक कॉन्सेप्ट। सो अबाउट इट आई एम गोना से कि sorry for the interruption. So what I'm saying कि like always focus on investing in the assets, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हम लाइबिलिटी को भी एसेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने फ़ोन खरीदा 6,000 का, एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब मुझे पता है 1 साल के बाद उसको 2,500 रुपये आएंगे, या लाइक 2,500 और 3,500, इट विल बी वर्थ दैट मच, ठीक है ना। सो मैंने किया क्या, मैंने फ़ोन लाया, मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। मुझे फ़ोन पहले नहीं था, मैंने फ़ोन लाया, मैंने 15,000 का, मैंने 20, 25, 30, 40, 50, 1.5 लाख का iPhone 16 पता नहीं क्या प्रो मैक्स वट एवर इट इज़, मैंने वो नहीं लाया। आई बॉट 6,000 रुपीज़ का मैंने फ़ोन एक लाया सेकेंड हैंड, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की। अब मैंने 1,50,000 का फ़ोन नहीं लाया, मैंने 6,000 का फ़ोन लाया, 1,44,000 मैंने बचाए। तो मैंने जो 1,44,000 मैंने बचाए ना, मैंने वो इन्वेस्ट किए। Let it be in anything. Let it be in, I will not discuss that, sorry, in this video. So I will make a different video for that, like where to invest, how to invest. Like I will definitely make another video for that, because it's going to be so long for that. So simply, what is the difference between a rich and a poor person is awareness, and the second difference is financial literacy. तुम लोग को पता होनी चाहिए। बहुत बार दिस थिंग माइट बी वेरी रिलेटेबल टू यू, कि मतलब तुम लोगों के बाप दादा ने, लाइक ग्रैंडफादर ने, नाना जी ने, दादाजी ने, लाइक उन्होंने कुछ ना कुछ बेचा होगा। लाइक आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स, लेट दैट पर्सन बी एक्स। उसके जो थे वालिद, उन्होंने एग्जाम्पल कभी ज़मीन खरीदी 50,000 की, अब बहुत टाइम पहले, लेट इट बी 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, तो उन्होंने 1 कनाल खरीदा। कितना आता अभी उसको, लाइक बहुत आता। आई डोंट नो करंट प्राइस ऑफ द कनाल, लेट बी मोर देन CR ही आता, आई गेस मोर देन 1 CR ही आता। तो 50,000 का 1 CR, तो उस टाइम पे उतना इन्वेस्ट करना, rather than buying something that's a liability right now. Liability, I have already explained you that. Something that like ना तुम्हारे जेब से पैसे निकालते, liability and assets, ठीक है ना। So just keep that thing in mind. I think this video has gone a bit too long than I said that it would be. Just let it be, ठीक है ना। So this is the last minute, I'm gonna just let it be. This is the last minute, I'm gonna just explain things. So be aware about the things around you. पता होनी चाहिए कि क्या, किसका प्राइस कैसे है, कैसे किस में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। दूसरों के लिए मत जियो, दैट इज़ माई एडवाइस टू यू। दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी मत जियो, दूसरों के हाथों में खुशी मत डालो। घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए 4 लोग क्या सोचेंगे, इट शुड बी लाइक दैट, ठीक है ना। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क फॉर योर फैमिली, just be a responsible man in your life, and that is what I want from you guys. And be aware about your environment, and financial literacy होनी चाहिए, जो हमारे mostly 80% including my parents नहीं थी।
There was no financial literacy at that time. But अभी तो हमें पता है ना, we have internet right now. They only had the books. अभी तो books हम पढ़ेंगे, that's something कि मतलब उसको कहते हैं ये extraordinary बंदा अगर कोई book पढ़ेगा, है ना? So it's like that. तो simply काम करो, अवेयर, अपने आप को अवेयर करो अबाउट योर सराउंडिंग्स, और फाइनेंशियल लिटरेसी लो. फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी. ठीक है ना? दूसरों के लिए ज़िंदगी मत जियो, खुद के लिए ज़िंदगी जियो. एंड फाइंड हैप्पीनेस इन समथिंग दैट इज़ रियली वर्थ बीइंग हैप्पी अबाउट. ओके, बस इतना कहना था. विल डिस्कस इन अनदर वीडियो दैट कि वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट, बॉन्ड्स क्या होता है, लाइक कैसे इन्वेस्ट करना होता है, इंटरेस्ट रेट, हाउ डज दैट एवरीथिंग वर्क. ठीक है ना? वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. दैट्स इट. It's a very simple video. I will do no editing in this video, nothing. कुछ भी edit नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, because I think words are enough.